Gracious Lord, we thank you for giving us yet another opportunity to come to your feet. अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने हमें आपके चरणों में आने का अवसर दिया। Your word says, wherever two or three gather together in my name, I will be there in your midst. That's a promise given to us. परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है, आपने प्रतिज्ञा किया है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर होते हैं, उनके मध्य में आपकी उपस्थिति होती है। We are grateful to you for your rich presence in our midst, which makes all the difference. पिता परमेश्वर, आपकी महान और बहुतायत की उपस्थिति के लिए, जो हमारे मध्य में एक बड़े परिवर्तन को लाती है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Bless the word and break the word and distribute your word unto each and every one of us so that we will enjoy life. We will enjoy eternal life. We will enjoy still small voice of the Lord speaking to us. पिता, अपने वचनों को दीजिए, उसे तोड़िए और उसे बाँटिए, ताकि आपके उन शब्द और वचन के द्वारा हमें जीवन मिल सके और हम उस छोटी-सी धीमी आपकी सुंदर आवाज़ को सुन सकें। Anoint us with your spirit as you have already promised and refresh our minds and hearts. Help us to have a face to face confrontation with our Lord in a special way. Help us to have deep insights of the scriptures. पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक कीजिए और हमारे मन और हृदय को ताज़ा कीजिए, कि हम फिर से आपकी उपस्थिति में एक-दूसरे के सामने आमने-सामने बैठकर आपके वचन के द्वारा ताज़ा हो जाएँ और बलवंत हो जाएँ। We humbly submit ourselves at your feet. Offer this prayer with thanksgiving, Jesus' most precious name. नम्रता के साथ प्रभु जी, हम आपके अधीन हो जाते हैं और आपके चरणों में इन सारी प्रार्थनाओं को रख लेते हैं। Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Thank you, my dear brothers, for your prayers. I humbly pray that please continue to pray for me and my ministry and my family. प्रिय भाई बहनों, आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी सेवकाई के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। I believe the ministry is a teamwork. It's not just one man doing it. We are working in some way or the other so that ultimate the purposes of the Lord be accomplished in and through us. और हम जानते हैं कि जो सेवकाई है वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, परंतु ये सामूहिक काम है, जिसमें कई लोग मिलकर किसी न किसी रीति से मिलकर परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करते हैं। So in the previous class we have studied chapter 1 of Habakkuk. Now we need to continue from chapter 2. हमने पिछली क्लास में हबक्कुक का पहला अध्याय अध्ययन किया था, आज हम दूसरे अध्याय से आगे जाएंगे। Let's recall our mind. आइए हम अपनी याददाश्त को फिर से ताजा करें। So in the last class we have seen that when we take the outlines from the book of Habakkuk, we could understand that Habakkuk could be divided into 6 parts. और हमने हबक्कुक भविष्यवक्ता की जब पुस्तक का अध्ययन शुरू किया था, तो हमने उसे अध्ययन के लिए 6 भागों में बांटा था। So first part is introduction of Habakkuk himself, and second one is the first question raised by Habakkuk. He says that I am crying out to you, but you are not hearing me and you are not answering my prayer. और हबक्कुक की किताब को अध्ययन किया हमने, जो 6 भाग में बांटा था। उसका पहला भाग है हबक्कुक की भविष्यवक्ता की पुस्तक का परिचय। दूसरा भाग, इसमें हबक्कुक का प्रश्न है। उन्होंने परमेश्वर के सामने चिल्लाकर कहा कि परमेश्वर, मैं चिल्लाता हूँ, दुहाई देता हूँ, परंतु आप नहीं सुनते हैं। So chapter 1 verses 5 to 11, God answers first question raised by Habakkuk. The Lord says, I'm sending Babylonians to discipline these people. और तीसरे भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उत्तर देते हैं हबक्कुक के सवालों का, अध्याय 1 उसका 5 से 11 के बीच में, और वो कहते हैं कि मैं बेबीलोन के लोगों को अनुशासन में लेकर आऊंगा। We have seen from different dimensions of these 3 parts in the last class. और हमने पिछले अध्ययन में इन तीनों जो भाग हमने बांटा था, उसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में हमने देखा। We have also seen fourth part where the prophet Habakkuk raises a second question. Why do you send more wicked people than Judah to punish them?
चौथे भाग में हमने देखा कि हबक्कुक का एक दूसरा प्रश्न जो परमेश्वर के सामने, और वो ये कि वो परमेश्वर के सामने सवाल करते हैं कि आप यहूदा के ऊपर आक्रमण करने के लिए यहूदा से भी ज़्यादा अधिक दुष्ट लोगों को क्यों इस्तेमाल करते हैं? So, chapter 2, verse 1 says, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. वर्स 2 वर्सेस 1 अंकल। Chapter 2 and verse 1. और हबक्कुक 2 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूँ। So, chapter 2, verse 2 to verse 20, God answers second question raised by Habakkuk. और वो हबक्कुक 2 अध्याय का 2 से लेकर 20 वचन में परमेश्वर ने हबक्कुक के दूसरे सवाल का उत्तर दिया। So, chapter 3 is the response to the answers given by God. So, we will see that bit by bit. और तीसरे अध्याय में फिर से परमेश्वर के उत्तर के प्रति जो हबक्कुक ने प्रतिक्रिया दिया उसके बारे में हम सीखेंगे। As we have read now, chapter 2, verse 1, I will stand at my God post and station myself on the watchtower, and I will keep watch to see what he will say to me. और दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूँ। We need to read the whole chapter 2 from beginning to the end to understand what the Lord is saying. To summarize the whole chapter, we can find three verses, very important verses. और दूसरा अध्याय का 2 से 20 वचन को हम पूरा पढ़ते हैं, और लेकिन उसके सारांश को समझने के लिए हम 3 वचनों से समझ सकते हैं। So whatever is God going to do in their midst, God says, you write it down what I'm saying, because you need to proclaim to the people, let people know what I'm going to do. और परमेश्वर ने हबक्कुक को कहा कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, उसे लिख लीजिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो नियत समय पर सब पूरी होने वाली बातें हैं। इसको आपको लोगों के सामने आकाशवाणी करना है, बताना है, इसलिए आप इसे लिख लीजिए। Chapter 2 and verse 2. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. और 2 अध्याय का 2 और 3 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ-साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएँ। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलम्ब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। So what I have kept on the screen is NASB version, New American Standard Bible. But what I am reading is from NKJV version. There could be little, the text looks little different, but absolutely the same meaning. Then the Lord answered me and said, write down the vision so that one who reads it may run, or one who runs may be able to read it clearly. So write it down in big letters so that even when a person is passing through speedily should be able to see it and then understand. और ये जो वचन लिखा हुआ है, ये एनएसवी वर्शन का है, और जो हमने पहले पढ़ा वो वचन एनकेजी वी वर्शन का है, परंतु इन दोनों में हल्का-सा ही फ़र्क है। जैसा कि यहाँ सामने लिखा हुआ है और यहाँ दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में यहाँ लिखा हुआ है कि जो कुछ दर्शन की बातें उसे तू लिख ले, ताकि कोई उसे दौड़ते हुए भी पढ़ ले, ऐसे बड़े अक्षरों में उसे लिख दे। So God is telling his prophet, whatever I'm telling you, whatever I'm going to do, you write it down such a way that even a person who is
running, when he sees that post, he may be able to understand what I am going to do. और परमेश्वर ने हबक्कूक को कहा कि मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसे आप इस प्रकार लिखिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत जल्दी से वेग से अगर दौड़ता हुआ भी पढ़े तो उसे समझ जाए। Verse 3 says, "For the vision is yet for the appointed time. It hurries, it will not fail. Though it delays, wait for it. It will certainly come. It will not delay long." और तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Whatever God has planned, He will execute it and He will fulfill it in His time, in His way, and no one can frustrate the plans and purposes of God. No one can baffle, no one can cancel, no one can disrupt what God has planned. God will do it, it will surely come to pass, but He will do it in His way, in His time. और परमेश्वर के इस वचन को कहने का यही मतलब है कि परमेश्वर की जो योजना है, उसे परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर और अपनी रीति से वो करने वाला है, परंतु उसमें कोई भी व्यक्ति रुकावट नहीं डाल सकता। परमेश्वर की योजना को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। वो परमेश्वर अपनी इच्छा से, अपने ठहराए हुए समय पर उसे पूरा करेगा। So we should not forget our study, what we have done in our previous class. We have already seen that Prophet Habakkuk was asking, when unrighteous people are attacking righteous people, and there is no law of God is being fulfilled, and the law of God is perverted, and justice is perverted, and violence is prevailing, and prophet is expecting God to involve and do something. और यहाँ पर जो भविष्यवक्ता है वो बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधर्मी लोगों ने परमेश्वर के धर्मी लोगों पर हमला कर दिया है और वो उत्पात मचा रहे हैं। और यहाँ पे न्याय का जो है वो हत्या हो रहा है और दुष्ट लोगों ने धर्मियों को घेर लिया है और न्याय का खून हो रहा है। इस प्रकार की वो बातें यहाँ पर कहते हैं। So for your information, let me read chapter 1 and verse 2 onwards. O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you violence, and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore, the law is powerless, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. Therefore, perverse judgment proceeds. Verses 2, 3, and 4. हबक्कूक 1 अध्याय उसका 2, 3, 4। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। This was written almost 4,700 years back. Maybe let us say 4,500 years back. It appears as if God is talking about our contemporary situation. और ये जो घटना है जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये 4500 ईसा पूर्व की बातें हैं, परंतु ये पढ़ने से ऐसा एहसास होता है कि मानो ये आज की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कहा जा रहा है। Many a time we also must have cried out saying that, Lord, there is lots of violence and there is no justice, and innocent people are being put to lots of trouble. How wicked people are prevailing, and that kind of prayer most of us are doing and expecting God to immediately answer our questions.
और कई बार हम भी ऐसे ही परमेश्वर से सवाल करते हैं कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है? धर्मी लोग बहुत सताए जा रहे हैं और दुष्ट लोग फलवंत होते जा रहे हैं और इस संसार में बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसा कई बार हम परमेश्वर के सामने चिल्लाते हैं और सवाल भी करते हैं। And many people think that because truth is perverted, because justice is perverted, because righteous people are being put to lots of trouble and they appear as if they are helpless, and they think that God is not there. If God is there, why such things should happen? Why God is not preventing such things? Why God is not stopping innocent people suffering? और कई बार जो परमेश्वर के लोग सोचते हैं कि सत्य क्यों नहीं दिख रहा है, न्याय क्यों नहीं यहाँ पे प्रकट हो रहा है। धर्मी लोग तो असहाय हो गए हैं और उनको सताव भी सहना पड़ रहा है। क्यों यहाँ पर उनकी कोई उनको कोई सुध ही नहीं ले रहा है, या फिर क्यों निर्दोष लोग सताए जा रहे हैं। ऐसे इस प्रकार का सवाल हम परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों आप उन्हें नहीं बचा रहे हैं। ऐसा कई बार हमारे जीवन में सवाल आता है। Let me repeat, because this is a very, very important study of the scriptures. We need to understand. Many people question why good people are suffering, why evil is prevailing, why wicked people are hale and healthy without any trouble, without any problem. But good people, honest people, innocent people are suffering and they are put to trouble, and there is no justice, there is no one to help. If good God is there, why God is not helping? Why God is not involving? Why God is not arresting all this evil? और कई लोग ऐसा परमेश्वर के सामने सवाल करते हैं कि अच्छे लोग सताए क्यों जा रहे हैं और बुरे लोग और दुष्ट लोग तो बढ़ रहे हैं और दुष्ट लोग भले चंगे भी रहते हैं, परंतु निर्दोष लोग ही क्यों असफल हो रहे हैं और निर्दोष लोग क्यों वहाँ पे सताए जा रहे हैं, वहाँ पे निर्दोष उन लोगों का न्याय नहीं हो रहा है। और अच्छा परमेश्वर अच्छा होने के बावजूद भी ये सब क्यों होने दे रहे हैं, इस प्रकार का हमें सवाल आता है। I don't know whether you remember or not, we have already studied these questions and we have already answered these questions when we studied the book of Job. और आपने अगर याद होगा तो इन सवालों का और सवालों का उत्तर हमने जब अय्यूब की किताब पढ़ी थी, तब हमने काफ़ी सारे सवालों का उत्तर को देखा था। The book of Job is a beautiful book in the Bible. God answers all these questions. There, let me recall your memory. If God is good, why God is allowing evil to prevail? और अय्यूब की किताब बहुत सुंदर किताब है और मैं आपको उसमें से अगर याद दिलाऊँ, तो हमने कई सारे सवालों का उत्तर देखा था और देखा था कि परमेश्वर अगर जो परमेश्वर जो है अच्छा है, तो परमेश्वर दुष्ट को बढ़ने क्यों देता है? If God is almighty, why God is not stopping all such evil prevailing over good? और हम हमारे अंदर सवाल आता है कि परमेश्वर अगर सामर्थी है, तो वो भलाई के ऊपर में ऐसी बुराई को बढ़ने से क्यों नहीं रोकता है? If God is loving, why God of love is keeping silent when good people are suffering, when innocent people are suffering, when honest people are put to trouble and they are almost helpless and there is no one to help? God should have helped them. और यहाँ पर हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि परमेश्वर प्रेमी है और वो प्रेम का परमेश्वर है, तो वो चुप क्यों रहता है? जब अच्छे लोगों को परेशानी होती है, निर्दोष लोग सताए जाते हैं, वे असहाय हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर चुप क्यों रहते हैं? We have answered all these questions when we studied the book of Job, and it is already available in the YouTube. You please go through that, you will be able to understand. But let us study in a different perspective in this book. और हम इन सवालों के उत्तर को अय्यूब की किताब में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप उसे यूट्यूब में देखें, तो आप उसको मिल जाएगा, परंतु हम इसे यहाँ एक नए दृष्टिकोण से हम हबक्कुक के अध्ययन से समझेंगे। God answers the questions of Habakkuk in just 3 statements. और परमेश्वर ने हबक्कुक के तमाम सवालों का उत्तर 3 बातों के द्वारा दे दिया। Chapter 2 and verse 4. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. और 2 अध्याय के 4 में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित
रहेगा। The important fragment, the focus of the truth is really focused in this fragment. But the righteous one will live by his faith. और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। In KJV, it is written, just shall live by his faith. In NASB version, it is written, the righteous one will live by his faith. Please repeat, uncle. KJV version says, just shall live by faith. But NASB version says, the righteous one will live by his faith. The same meaning is the same. The just shall live by faith. ओके। और जैसा कि यहाँ किंग जेम्स वर्शन में लिखा है कि वे विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे, और जैसे कि एनएसबी में जो वर्शन में वहाँ लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। So, in the last class, we have already learned that the Hebrew word translated faith is also can be written as faithfulness. और जैसा कि हमने देखा पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि इब्रानी भाषा में जब हम विश्वास को देखते हैं तो उसका अर्थ विश्वास योग्यता भी होता है। So the actual meaning fits when it is written as faithfulness. The righteous one will live by his faithfulness. Then we'll get the total picture, the purpose of writing this particular verse. और इस वचन के अर्थ लिखने के अर्थ को हम समझ पाते हैं जब हम वहां पर कहते हैं कि धर्मी जन अपने विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेगा। If we have to read verbatim from King James Version, we need to say that the just shall live by his faithfulness. और जब हम किंग जेम्स वर्शन में अध्ययन करते हैं तो वहां लिखा है कि वे विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। So last class we have seen that this particular verse is referred in the New Testament in 3 places, and it was expounded more. और हमने देखा था कि ये जो वचन है वो नए नियम में 3 स्थानों पर हमें मिलता है जिसे और अच्छे से विस्तृत किया गया है। We find it in Romans chapter 1 and Galatians chapter 3, and Hebrews also we find the same reference. Anyway, we are going to go in future. We will see all these details later. और ये जो वचन है जो इसी वचन का रेफरेंस जो है नए नियम में रोमियो 1 अध्याय, गलातियों 3 अध्याय और इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में आपको मिलता है। So let me give you a summary of those interpretations. और आइए हम थोड़ा-सा इस प्रकार के अनुवाद का हम थोड़ा-सा एक सारांश को पढ़े समझें। Here the context is because the people of God, Judah, they have rebelled against God. They sought idolatry. They have rejected the living God of the Bible, and so there is violence among them, and they are attacking righteous and letting them down, and justice is perverted, and their behavior is so evil because they have forsaken God, and they have taken law into their own hands. और यहाँ पे संदर्भ ये है कि यहूदी लोग जो हैं वो विद्रोही हो गए परमेश्वर के, और वे मूर्ति पूजा करने लगे और उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। इस कारण धर्मी लोग जो हैं वो हानि उठाने लगे, और यहाँ न्याय परिवर्तन हो गया, और कई प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ गई क्योंकि ये लोग परमेश्वर को भूल गए थे। Let me present you in a contemporary language or in a colloquial language, in a common man's language. और इसको हम जब अध्ययन करेंगे अपनी आज की भाषा में या आज की बोलचाल की भाषा में तो हम इसे कैसे समझेंगे? If my behavior has to be right, my theology has to be right. अगर मेरा व्यवहार सही है तो इसका मतलब है कि मेरा सिद्धांत भी सही है। If my theology is proper, then my behavior will also be proper.
और इसका मतलब यही है कि मेरा अगर सिद्धांत ज्ञान जो है वो उचित है, सही है, तो मेरा व्यवहार भी उसी के अनुसार उचित और सही होगा। Exactly. So my belief system will drive my lifestyle. और मेरे जो विश्वास की जो तरीका है, वो मेरे दिनचर्या को प्रभावित करता है। If my lifestyle is wrong, then my belief system is wrong. और अगर मेरे दिनचर्या उचित नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे विश्वास करने की प्रक्रिया भी सही नहीं है। Suppose I'm a liar, I'm a cheater, I'm a debaucher, maybe I'm a rogue in my behavior. मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में झूठापन और धोखेबाजी और इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, तो इसका क्या मतलब है? So that means my belief system is wrong, my theology is wrong, my understanding of God and my trust in God, everything is has to be questioned. और अगर हमारे जीवन में इस प्रकार का झूठापन, धोखेबाजी है हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में, तो इसका मतलब है कि हमारे जो विश्वास की जो प्रक्रिया वो सही नहीं है, हमारा थियोलॉजी का जो परमेश्वर का ज्ञान सही नहीं है, हमारी समझ सही नहीं है, हमारे विश्वास का जो तरीका है वो जीने का वो सही नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं। In the chapter 1, we have seen verses 2, 3, and 4 how the people of Judah rebelled against God, they forsook God, they sought their own ways, and they were following the idolatry. And so there was lots of violence, and truth is perverted, justice is perverted, and they were attacking righteous and innocent people. और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यहूदी लोग थे, ये परमेश्वर से विद्रोह करने लगे और ये परमेश्वर को भूल गए, अपने तरीके पे चलने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। इसी कारण इन्होंने सत्य को परिवर्तन कर दिया, न्याय को भी परिवर्तन कर दिया और धर्मियों पर आक्रमण कर दिया। So Prophet Habakkuk is praying God to involve and rectify the issue. और यहाँ इसीलिए हबक्कूक प्रार्थना करता है और इन तमाम विषयों को सुधारने के लिए परमेश्वर के सामने वो सवाल रखता है। If God is holy, if God is perfect, if God is God of justice, and God has to definitely execute justice among them, God has to punish them because they are wicked. और यहाँ हबक्कूक की प्रार्थना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, सिद्ध है और न्यायी है, तो ज़रूर वो इन लोगों पर न्याय प्रकट करेगा, इन लोगों को सज़ा देगा, दुष्ट लोगों को, ऐसा हबक्कूक की प्रार्थना है। And so God is allowing Babylonians to attack them and to discipline them and to put them in proper shape. इसीलिए परमेश्वर ने बेबीलोन को ये इजाज़त दी कि वो यहूदियों को अपने वश में कर ले, गुलाम बना ले और इनको अनुशासन में लेकर जाए। Prophet Habakkuk had a second question. He was asking, the people of Babylonian were more wicked than people of Judah. Why are you allowing more wicked people of Babylonians to attack the people of God, although they are better than people of Babylonian? और हबक्कूक का दूसरा सवाल ये था कि बेबीलोन के लोग जो ज़्यादा दुष्ट हैं स्वभाव में, वो यहूदा के लोगों को क्यों आक्रमण करेंगे जबकि यहूदा के लोग तुलना में कम दुष्ट हैं। तो वो परमेश्वर से सवाल करते हैं कि उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्होंने बेबीलोन को क्यों अधिकार दिया? It is a common understanding or common sense anyone can understand that. So there is a war between countries to prove their strength and to have their own agenda to be fulfilled. और हम जानते हैं ये तो साधारण सी समझ की बात है कि जब 2 देशों में युद्ध होता है तो या तो वो किसी अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध करते हैं या तो उनका ही युद्ध करने का एक खुद का उद्देश्य होता है। So everyone will have their own agenda, right or wrong. Sometimes it is very difficult to do justice. और हर व्यक्ति का अपना एक युद्ध करने का कारण हो सकता है, चाहे वो सही हो या गलत और उसका एक हर हर बात का एक अलग न्याय हो सकता है। Right now, we know the war between Russia and Ukraine. और जैसे कि हम अभी जो युद्ध चल रहा है जिसमें हम रशिया और यूक्रेन के उदाहरण को देख सकते हैं।
Right now, Israel is fighting against Hamas terrorism, and Israel is fighting against Hezbollah's terrorism, and Iran is diametrically opposite to Israel. We know that country against country is not a new news. The war in between countries, it is there from the very beginning. और हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसी प्रकार इज़राइल और हमास का भी युद्ध हो रहा है। इज़राइल और हमास के आतंकवादियों का युद्ध हो रहा है। हम देखते हैं कि ईरान जैसे देश इज़राइल के विरोध में खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि देश-देश के लोग एक-दूसरे के विरोध में खड़े हुए, ये कोई नई बात नहीं है। So normally a stronger country will try to dominate over weaker countries and subdues them, and whatever advantage they want to have, they will have it. और अक्सर ये देखा जाता है कि जो सामर्थी देश होते हैं, वे कमज़ोर देश पर आक्रमण कर लेते हैं और उसे अपने अधिकार में लेकर अपने तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं। So we have already seen in our earlier class that God was protecting his people by keeping a fence around them so that the enemies cannot approach them, enemies cannot attack them, enemies cannot loot them or destroy them. और हमने देखा था कि पहले के अध्ययनों में कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना के रखते हैं। वो उनके चारों ओर एक बाड़ा रखते हैं जिसको शत्रु पार नहीं कर सकता और शत्रु उन पर आक्रमण करके उन्हें लूट नहीं सकता। So when people of God don't obey God, when people of God disobey God, reject God, and then God has to teach them a lesson, and God has to put sense in their mind that without God, they cannot handle their life, they cannot face enemy, they cannot have victorious, victory over enemy. और यहाँ फिर परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और परमेश्वर के लोगों की अनाज्ञाकारिता के कारण और वो जब परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर उन्हें एक अध्याय सिखाते हैं कि वे अपनी सामर्थ्य से और खुद से इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकते। So what God will do, God will remove the fence of protection around them. इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए वो परमेश्वर ने जो घेरा बना के रखा था, वो सुरक्षा का घेरा हटा देते हैं। Then enemy will attack. तब शत्रु जो है आक्रमण कर देते हैं। Here chapter 2 verse 4, the verse is in the context when enemy is attacking, when there is terrible opposition, when there is terrible oppression, even in that difficult situation as well, the righteous one will live by his faithfulness. और यहाँ जो दूसरे अध्याय के 4थे वचन में परमेश्वर बताना चाह रहे हैं वो ये है कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में जबकि शत्रु उन पर आक्रमण कर रहा है, ऐसी कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी धर्मी अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रह सकता है। So the just will live by his faithfulness, irrespective of the circumstances, whether cooperative or non-cooperative, irrespective of circumstances, whether they are favor or aggressive or diametrically opposite, or in any form for that matter. और यहाँ परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि जो वे लोग हैं वो विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेंगे, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे उनके चारों ओर की परिस्थितियाँ उनके पक्ष में हो, तीव्र हो या उनके विरोध में हो, लेकिन वो विश्वास योग्यता के द्वारा जी सकते हैं। So, for you to understand this particular fact, I have to take you to the New Testament understanding in reading this particular statement in three portions: book of Romans and book of Galatians and book of Hebrew. और इस बात को समझने के लिए हम नए नियम की ओर जा सकते हैं और नए नियम में इस वचन के रेफरेंस को जो कि रोमियो की किताब, गलातियों की किताब और इब्रानियों की किताब में है, हम उसे देख सकते हैं। Summary says that anyone who puts his trust in the Lord Jesus Christ, by faith he is justified. और यहाँ पर हम सारांश ये सीख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख सकते हैं और विश्वास योग्यता के द्वारा वो जी सकते हैं। So we are justified by faith, not by works. और इसीलिए हम सीखते हैं
कि हमारा जो न्याय है वो कर्मों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा होता है। That means we are made righteous. Justified means we are made righteous by faith, not by works. और इसका मतलब ये है कि हम कार्यों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। So becoming righteous is the point. How can a person becomes righteous? Not by works, but by faith. That's what Bible says in the New Testament. और नए नियम में यही बात सिखाई जा रही है कि मनुष्य धर्मी कैसे बनता है, वो महत्वपूर्ण बात है और वो कार्यों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। So if we can carefully read the New Testament, we understand three things. इसलिए हम नए नियम को जब पढ़ते हैं तो हम 3 बातों को सीखते हैं। By grace, अनुग्रह के द्वारा, through faith विश्वास के द्वारा, in Jesus Christ. यीशु मसीह में। Let me repeat. By grace. अनुग्रह के द्वारा, So just by the grace of God alone, a person is made righteous or a person is declared righteous. और इसीलिए केवल अनुग्रह के द्वारा एक व्यक्ति जो है धर्मी ठहराया जाता है। By grace, not by works. और अनुग्रह के द्वारा परंतु कार्यों के द्वारा नहीं। By grace, not with human strength or human capabilities. और अनुग्रह के द्वारा ना कि मानवीय सामर्थ्य और मानवीय बुद्धि के द्वारा। Through faith in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। So what kind of faith it is? तो ये किस प्रकार का विश्वास हुआ? That Jesus as Lamb of God died on the cross of Calvary 2000 years ago. He is both God and man. That means God came into this world as human and as Lamb of God died on the cross of Calvary and paid the price of redemption. तो ये किस प्रकार का विश्वास है? ये इस प्रकार का विश्वास है कि परमेश्वर का जो मेमना है आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया और वो संपूर्ण रीति से मनुष्य भी था और परमेश्वर था और वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और परमेश्वर के मेमने के रूप में क्रूस पर बलिदान होकर हम सबको लिए छुटकारे की कीमत दिया। So just as Prophet Habakkuk was raising his voice in the first question, the violence, the wickedness, and the evil, and we are all the guilty party in the same way, and the righteous God should execute his justice upon us, and the wrath of God should fall upon us. But instead, God became man and he became the Lamb of God. He died on the cross of Calvary. He paid the price for all the sin we have done on our behalf in our place. और जैसे कि हबक्कuk जो है वो पहले सवाल कर रहा है कि किस प्रकार उपद्रव हो रहा है वहाँ पे बहुत ही विवाद और ये जो गलत हो रहा है, तो इसके लिए परमेश्वर ने एक उत्तर दिया कि परमेश्वर क्या जो मेमना है वो इस धरती पर आएगा और मनुष्य के द्वारा क्षमा होने के लिए, उनके छुटकारे होने के लिए वो कीमत चुकाएगा। Because he is both God and man, he rose again victoriously on the third day. When we trust him, when we believe him, that he and the blood shed on the cross of Calvary cleanses my sins, purges me, makes me clean, and the righteousness of God is imparted upon me. और यहाँ हम समझ सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया और इसीलिए वो तीसरे दिन मृतकों में से विजयी होकर जी उठा और जब हम पर विश्वास करते हैं तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है और हमें धर्मी होने का अनुग्रह प्रदान करता है। So, by the grace of God, not because I'm worthy, not because I'm capable enough, I'm attracted by God to save me. No, by grace, just by grace. Although I'm not worthy to be saved, I'm not worthy to be considered by God in any way. Just by grace, number one. Number two, by faith, not by works. Human beings, we have no capacity whatsoever to be righteous or to be good. और पहली बात ये है कि केवल अनुग्रह के द्वारा
हम धर्मी ठहरते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम में कोई आकर्षण था, इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, ऐसा नहीं है, परंतु ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है, परंतु ये विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि हमारे कामों की कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है कि हम उसके द्वारा अच्छे दिख सकते हैं। And thirdly, in Jesus Christ, apart from Jesus Christ, we have no savior, and no one can save us, because Bible says all have sinned and come short of the glory of God, and there is none can help us. Our own righteous deeds are filthy rags before God. और तीसरी चीज़ है, मसीह में हम बचाए जाते हैं, क्योंकि मसीह से अलग होकर कोई भी बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वचन में लिखा है, उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो केवल मसीह में बचाया जाता है, धर्मी व्यक्ति को किसी और तरीके से नहीं बचाया जा सकता। So let me repeat, by grace, through faith in Jesus Christ. तो अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हम बचाए जाते हैं। So then the righteousness of God, the righteousness of Jesus Christ will be imputed unto me, and thereby God declares me righteous. God justifies me. और परमेश्वर का जो धार्मिकता है, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, वो मेरे अंदर डाला जाता है। इसीलिए मैं भी धर्मी कहलाता हूँ, और परमेश्वर के समान मेरी धार्मिकता प्रकट होती है। That is what we find in Galatians chapter 3. Apostle Paul labors his point explaining that humans are justified by faith, not by works. इसीलिए गलातियों 3 अध्याय में पौलुस जो है इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। There he explains Abraham. और वो अब्राहम का उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। Abraham is justified by grace. Abraham is made righteous by grace, not by works. और अब्राहम को बताते हैं कि वो अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरे गए थे, और यहाँ पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे थे, ना कि वे उनके कामों के द्वारा धर्मी ठहरे थे। Genesis chapter 15, there it is written that Abraham believed God and Abraham was justified. He was made और यहाँ righteous. लिखा है, यस, और उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यही विश्वास जो है उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। Circumcision, the circumcision of Abraham is written in 17th chapter. Circumcision is an agreement, is a covenant between God and Abraham, but that is later. So before circumcision, Abraham was justified by faith. He believed in God and God justified him. That's what Apostle Paul labors his point, saying that we are anyone, anyone is justified by faith, not by works. और पौलुस इस बात को बताते हैं कि हम कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। जैसे अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं 15वें वचन में कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे थे, परंतु खतना करने की उनकी आज्ञा हम उत्पत्ति 17वें अध्याय में देखते हैं, जो कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक वाचा थी, और इसके द्वारा वो धर्मी नहीं ठहरे, परंतु उसके पहले ही लिखा गया है कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे। So initially, or the first part is that a person must be made righteous by faith in Jesus Christ. और तो शुरुआत की बात और पहली बात ये है कि एक व्यक्ति मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। And then the just shall live by faith, and then the righteous will live by his faithfulness. और तब ये कहा जाता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, या धर्मी अपने विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेगा। Under what circumstances? Even the circumstances are terrible, even the circumstances are diametrically opposite to him, and in spite of, instead of, irrespective of the circumstances around, the righteous one will live by his faithfulness. तो इसका अर्थ ये है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खतरनाक हो, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, तो भी मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Apostle Paul labors his point in Romans chapter 8. Please turn with me to Romans chapter 8. I will not be able to
take you, more of that fragment of the scripture, but I will just remind you how this a righteous man will be able to live by his faithfulness in such terrible conditions. तो पौलुस जो है इस बात को प्रकट करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे धर्मी जन जो है वो इन विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास के साथ विश्वास योग्यता के द्वारा जी सकता है। So, Romans chapter 8, I am reading from verses 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Or in verse 38, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. और रोमियो 8 अध्याय के 35 वचन में और उसके 38 और 39 वचन में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Verse 36 and 37, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. और 36 और 37 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। Because the grace of God will be richly displayed in the life of righteous one, and thereby he will be able to live by his faithfulness. और अनुग्रह का जो धन है वो परमेश्वर के लोगों के सामने बहुतायत से उंडेला गया है, इसीलिए धर्मी के जीवन में हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्यता के द्वारा जीते हैं। There are many verses in the Bible. We'll not be able to go all the details of it, but I will try to help you to understand few important portions of the scriptures where we understand the grace of God, which enables the righteous to live in spite of the difficult and horrible and terrible situations. और मैं आपको बहुत सारे वचन बाइबल में से बता सकता हूँ जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अनुग्रह जो है उसके कारण धर्मी जन अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ जी सकता है। Please turn with me to 2 Corinthians chapter 4 and verse 8. और मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्ती की किताब उसका 4 अध्याय वचन 8। I'm reading in NKJV version. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. और दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 8, 9, 10 में पौलुस इस प्रकार के लिखते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Here, 2 Corinthians chapter 6, Apostle Paul says from verse 4 onwards, 2 Corinthians chapter 6, verse 4 onwards. But in all things we commend ourselves as ministers of God in much patience, in tribulations, in needs, in distress, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fastings, by purity, by knowledge, by long suffering, by kindness,
by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers yet not true, as unknown yet not well known, as dying and before we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet not yet making many rich, as having nothing yet possess all things. और दूसरा कुरिन्थ 6 उसके 4 वचन से 10 वचन तक हम देखते हैं, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं पर देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। The self-explanatory, I don't have to explain. There we find the power of grace operating in such terrible and difficult situations. The righteous will sustain. The righteous will live by his faithfulness. और यहाँ पे हम ये वचन जो है अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि किस प्रकार जो है अनुग्रह के कारण जो है खतरनाक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में एक धर्मी जन स्थिर रहेगा और अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेगा। If you want to know more about the operation of grace in terrible and difficult situations, we need to understand how Paul could handle himself when he was going through such terrible situations. और अगर हम अनुग्रह के द्वारा हम सीख सकें कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में अनुग्रह हमें बचाता है, उसको समझने के लिए हम पौलुस के उदाहरण को सीख सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है। We can have a glimpse of it when we read 2 Corinthians chapter 12 and verse 7 onwards. I am reading it for you. I request you to kindly hear me. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. और दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 से लेकर 10 में हम देखते हैं, इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। The righteous one will live by his faith in NASB version, but whereas in KJV version, the just shall live by his faithfulness. और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है एनएसवी वर्शन में कि धर्मी जन विश्वास योग्यता से जिएगा, और उसी प्रकार किंग जेम्स वर्शन में भी लिखा है कि वे विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेंगे। Hope the message is very clear. तो मैं विश्वास करता हूँ कि संदेश बहुत स्पष्ट है।
let me recall our memory. The first thing is a man or a woman is justified by faith. और तो पहली बात ये इसको याद रखें कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। Three things: by grace, through faith in Jesus Christ. अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है, वे धर्मी ठहराए जाएँगे। What do you mean by righteousness, or how do we understand the very word righteous? और धर्मी जो शब्द है या धार्मिकता का जो शब्द है, उसका अर्थ हम कैसे समझ सकते हैं? So it's a very big one. It has got lots and tons of details hidden in it. और इसके लिए बहुत सारी जो सच्चाइयाँ हैं, वो लाखों प्रकार की सच्चाइयाँ जो है, वो छुपी हुई है। Let me try to explain in a simple term so that even an ordinary person can easily understand. You don't have to be a big technical theologian. और मैं आपको सामान्य शब्दों में बताऊँ कि इसका मतलब क्या है, ताकि कठिन थियोलॉजी के द्वारा जो नहीं समझ पाते हैं, वे समझ सकें। So, only a righteous person can enter into the most holy presence of God. और हम जानते हैं कि केवल धर्मी व्यक्ति ही महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। So, if any person has to enter into the most holy presence of God, that person ought to be righteous. यदि कोई लोग महापवित्र स्थान में जाना चाहें, तो उसे धर्मी होना ज़रूरी है। But Bible says that our righteousness is like a filthy rags before the presence of God. और हमारी जो वचन के सामने लिखा है कि हमारी जो धार्मिकता है, वो मैले चिथड़े के समान होती है। Suppose I am a man with leprosy, my fingers, all fingers affected with leprosy, and most of the fingers are eaten away by that disease. और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाए और वो उसकी जो उँगलियाँ हैं, वो सड़ जाएँ और उसके कारण वो समाप्त हो जाए। If such a person infected by leprosy, fingers were, were eaten away by that disease, if that person gives you any sweet, any valuable sweet or very tasty one, will you eat? और अगर इस प्रकार का कुष्ठ रोगी जिसका उँगली सड़ गई हैं और उसकी उँगलियाँ नष्ट हो गई उस रोग की वजह से, अगर ऐसा व्यक्ति कोई हमें बहुत सुंदर या स्वादिष्ट मिठाई दे, तो क्या हम उसे ग्रहण करेंगे? Exactly the same way, Bible says humans are corrupted from their very birth. और इसीलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है, अपने जन्म से ही भ्रष्ट होता है। It does not mean that the human life is a corrupted one. The point is, our sinful nature, human beings are born with that sinful nature. Because of that sinful nature, human beings, they sin, and they become slaves to the sin, and they are depraved because of the sin. Hello? 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 Anil Kare? Hello? यस अंकल। I think my connection is disconnected, it seems. यस अंकल। Oh, sorry for it. I think the net was weak. Okay. So in the same way, a man who is born with sinful nature, who is infected with the sin, and become a slave for the sin, and because of his sinful nature, because of his sins,
because of his slavery of sins, man is corrupted, and man can never be righteous, and man cannot enter into the most holy presence of God. और चूंकि मनुष्य जो है वो पाप में स्वभाव के साथ पैदा होता है, इसलिए उसके जीवन में पाप होता है और वो पाप के दासत्व में रहता है और उसके जीवन पाप से दूषित होता है। इसीलिए इस पाप के कारण वो भ्रष्ट होता है और वो धर्मी नहीं हो सकता और इसलिए इसी कारण वो महापवित्र स्थान में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। So, when such person puts his faith in Jesus Christ, because Jesus is God who became man, so that the problem of sin he has solved as a savior, and the righteous wages because of the sin is death. So that death he took it upon himself on the cross of Calvary. As a human he died, and he paid the redemptive price that should be paid by the human beings, and he rose again victoriously because of his resurrection power, and we will be made righteous because of the righteousness of Jesus Christ is imparted to us. और हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है इसलिए वो धर्मी ठहराया जाता है। हम जानते हैं क्योंकि मसीह जो है वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया और मनुष्य के पापों के लिए एक समाधान लेकर या उपाय लेकर आया और उन्होंने सभी पापों को अपने ऊपर लिया। क्योंकि हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, परंतु प्रभु ने उसे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो पाप के लिए कीमत चुकाने के लिए मर गया और इस प्रकार कीमत चुकाने के बाद पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जी उठा और इसी कारण वो जब लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो वो धर्मी ठहराए जाते हैं। So we have also seen a person who is made righteous because of the righteousness of Jesus Christ imputed on him. He can have access into the most holy presence of God. He can pray, he can worship God, he can have fellowship with God, he can listen what God says, he can understand what God says, he can follow God and enjoy the fellowship with God, enjoy the grace of God. और हम देखते हैं कि क्योंकि मनुष्य के अंदर में जो धर्मीपना होता है, वो मसीह की धार्मिकता होती है जो उसके अंदर डाली जाती है और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, आराधना कर सकता है, परमेश्वर की संगति में रह सकता है, परमेश्वर की सुन सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है और परमेश्वर के पीछे बड़े आनंद से वो चल सकता है। So the righteous one will live by his faithfulness. What kind of faithfulness? It is the faithfulness because of the grace of God, because of the power of the Holy Spirit. He will be able to survive in spite of the terrible situations around him. और ये विश्वास योग्यता क्या है जिसके द्वारा मनुष्य जीता है, वो ये है परमेश्वर का जो अनुग्रह उनके ऊपर होता है और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ होती है, उसके द्वारा ये जो मनुष्य है, जो धर्मी ठहराया जाता है, वो बहुत ही खतरनाक और विपरीत परिस्थितियों में भी जी सकता है। So if you are listening for the first time, or if you could not understand what I'm trying to say, please listen this message again and again. You try to understand bit by bit. You'll be able to understand, and may the Lord grant His grace for you to understand the truth. और अगर आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन संदेशों को बार-बार सुनिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो और आप इसे समझ पाएँ। And the Spirit of God and the Holy Spirit will help you. He will open your eyes of understandings, and He'll open your mind and your heart, and He will enable you to convict the truth hidden in the scriptures. और पवित्र आत्मा आपको समझ दे और आपके मन और हृदय और समझ को खोले ताकि उसके आत्मा के द्वारा आप कायल हो सकें और जो सत्य वचन जो सच्चाई छुपी हुई है वचन में, उसे आप समझ सकें। So, when you understand verse 4, then you can understand verse 14. और तब आप इसके 14 वचन को आगे समझ पाएँगे। So, verse 14 says, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, just as the water covers the sea."
और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं दूसरे वचन अध्याय उसके 2 अध्याय के 14 वचन में, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। So when your eyes of understanding are open, when you are declared righteous, when you are when you have an access into the most holy presence of God, when you are enjoy the fellowship with God, then you will be able to see the glory of God prevailing all over the earth, just as waters covers the sea. और जब परमेश्वर आपकी आँखों को खोलेंगे कि आप उसके सत्य की बातों को देख सकें, समझ रूपी आँखों को खोलेंगे, तब आप समझ पाएँगे कि एक धर्मी जन जो है वो परमेश्वर की महिमा की जो मतलब कैसे महिमा होती है उसको देख सकेगा। जब उसकी वो संगति में आनंद में रहेगा, तब वो जान पाएगा कि ये पूरी धरती कैसे महिमा के ज्ञान से भरी हुई है। Romans chapter 1 in the Bible, it says very clearly that the very creation declares the glory of God. The very creator is seen in the creation, the mighty power of God, the deity of of God himself is clearly displayed in all the creation of God. और रोमी की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि सृष्टि के द्वारा सृष्टिकर्ता दिखाई देता है और परमेश्वर की जो सामर्थ है और परमेश्वरत्व जो है, वो सृष्टि के कामों के द्वारा नज़र आती है। So when we carefully try to analyze the very creation, just like when we look at the art, a beautiful art, we understand artist behind the art. और जब हम सावधानी से इसका अवलोकन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो इतनी सुंदर रचना परमेश्वर ने बनाई है, इसका मतलब है कि इसके पीछे एक सुंदर रचनाकार ज़रूर मौजूद है। When you find a beautiful pot made by the potter, and potter is evident, and this pot is made by a potter. A pot cannot exist all by itself. और अगर आप एक सुंदर घड़े को देखें, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि इस घड़े को बनाने वाला ज़रूर कोई कुम्हार होगा, क्योंकि ये घड़ा अपने आप बन नहीं सकता। Whenever you find an effect, we'll find cause behind the effect. We find, and thereby we say cause and effect. Without cause, there can't be an effect. और अगर हम किसी प्रभाव को देखते हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। कोई भी प्रभाव बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। When we see the flower, the amazing artist behind the flower, who gave that fragrance, who gave that color, who gave that design. When we see the design, we understand the designer. और हम देखते हैं कि एक सुंदर फूल को जब हम देखते हैं, तो उसके पीछे उसकी रचनाकार को हम देख सकते हैं कि फूल की जो सुंदर सुगंध होती है, उसका जो रंग होता है, उसकी जो रचना होती है, उसको देख के हमें पता चलता है कि इसके पीछे का रचनाकार कितना सुंदर है। Not all can understand, but those whose eyes of understandings are open, those who are made righteous in Jesus Christ, they will be able to see the glory of God prevailing all over the earth, just as water covers the sea. और जिस व्यक्ति की परमेश्वर ने समझ रूपी आँखों को खोला हुआ है और जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वही केवल समझ सकता है कि कैसे ये पूरी धरती महिमा के ज्ञान से भर गई है, जैसे कि समुद्र जल से भरा हुआ है। And then that person will come to verse 20. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth be silent before him. और तब हम 20 वचन को समझ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर कहते हैं, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। What do we do when God is in the holy temple? और जब परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में होते हैं, तब हम क्या करना है? We will worship God in the holy temple of God. और उस पवित्र मंदिर में हम परमेश्वर की आराधना करना। We will bow down before him and we fall prostrate before him and we worship him, we praise him and we glorify him and we exalt him and we honor him and we pay all our vows before him. और हम जो है ऐसा परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जब परमेश्वर रहते हैं, तो हम उसके सामने झुकना है, आराधना करना है, उसके नाम को ऊँचा उठाना है, उसे महिमा देना है, उसका आदर करना है। And Prophet Habakkuk was asking question,
And now God is answering in these three statements. But the और righteous जो हबक्कुक will live by his faith. The earth will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover sea. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth be silent before him. और हबक्कुक के सवालों का परमेश्वर इस प्रकार उत्तर देते हैं और उसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं कि धर्मी अपने विश्वास योग्यता के द्वारा जिएगा 4 वचन और उसके बाद 14 वचन में कि पृथ्वी अपनी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है और 20 वचन में जैसा परमेश्वर ने कहा परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। And now prophet Habakkuk is responding in chapter 3. और इस प्रकार हबक्कुक जो है वो अध्याय 3 में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। So, in one words, we can say that now Habakkuk is responding in praise and worship and intercession. और हमें कह सकते हैं कि हबक्कुक अपनी प्रक्रिया में परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है और वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। I'm reading it for you, chapter 3 in verse 2. O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. और हबक्कुक 3 अध्याय 2 वचन में वो कहते हैं, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण रख। So, due to lack of time, I'm not going to expound much on this verse. और समय की कमी के कारण हम इसे और ज़्यादा नहीं बोल पाएँगे। You please work on yourself, do homework on this. इसके लिए आप अपने घर में का होमवर्क करें और इसके ऊपर अध्ययन करें। And prophet Habakkuk was recalling all the history from verses 2 to 16. And verse 16, he says, when I heard and my inner parts trembled, at the sound my lips quivered, decay enters my bones, and in my place I tremble because I must wait quietly for the day of distress, for the people to rise who will attack us. और हबक्कुक जो है वो 3 वचन से लेकर 16 वचन तक वो इतिहास को बताते हैं और वो 16वें वचन में इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा और मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगी और मैं खड़े-खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा, जब दल बाँधकर प्रजा चढ़ाई करे। In chapter 1, the Lord was explaining what kind of wicked people, the enemies of Israel, the army of Babylonians attacking them. और पहले अध्याय में कैसे परमेश्वर ने बताया था कि बेबीलोन जो है, जो शत्रु हैं, जिन्होंने इज़राइल पर आक्रमण किया था, वो शत्रु जो आक्रमण करने वाले कितने दुष्ट हैं। So when he was hearing such army marching, when he was able to imagine that such army was attacking, he says in verse 16, when I heard, my inner parts trembled. At the sound, my lips quivered, decay entered my bones, and in my place I tremble because I must wait patiently for the day of distress and the people to arise who will attack us. और जब ये जो है बेबीलोन के शत्रु इस प्रकार आक्रमण कर रहे हैं, उस परिस्थितियों में उसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ हबक्कुक के 16वें वचन में ये कहता है कि यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा और मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगी और मैं खड़े-खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा, जब दल बाँधकर प्रजा चढ़ाई करे। Now he says, verse 17, even if the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vines, if the yield of the olive fails, and the fields produce no food, and if the flock disappears from the fold, and there are no cattle in the stalls. और 17वें वचन में कहते हैं क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो। He was actually explaining in a poetic format, when enemy attacks, he will destroy, they will destroy everything to the ground, to the dust and ashes. और ये एक कविता के रूप में वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब शत्रु आक्रमण करता है तो वह सब कुछ को नाश कर देता है और धूल में मिला देता है। He says, even if tree does not blossom,
fig tree does not blossom, even there is no fruit in the vines, if the yield of the olive fails and the fields produce no food, even if the flock disappears from the fold and there are no cattle in the stalls, yet I will triumph in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation, because the Lord God is my strength, and He has made my feet like deer's feet, and He has uh, me walk on my high places. और वो इस प्रकार कहते हैं 17, 18, 19 वचन में, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरणी के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। How He was able to do that? और वो इस प्रकार कैसे कर सकते हैं? Because He was declared righteous in the presence of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ठहराए गए हैं, Because His sins were forgiven. क्योंकि उनके पापों की क्षमा हो गई है, Because He had an access with the most holy presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाने के योग्य बने हैं, Because He enjoys the fellowship with God. क्योंकि वे परमेश्वर की संगति का आनंद ले पा रहे हैं। That's what He says in chapter 3, verse 18. Yet I will triumph in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He has made my feet like deer's feet and has me walk on my high places. और इसलिए वो 18, 19 वचन में कहते हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरणी के समान बना देता है और वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। That is the ministry of grace. ये है अनुग्रह की सेवकाई। Actually, verse 16 says, when he heard the army of Babylonians attacking them, when such horrible, wicked people coming and attacking them, we know how Babylonians attacked Jerusalem, attacked Jews, they burnt the Jerusalem, they destroyed the temple of God, they destroyed the whole city of Judah and turned to ashes. When such was the situation, he says, yet I will rejoice in the God of my salvation. I will triumph in the Lord, because the Lord God is my strength. और 16वें वचन में हबक्कुक भविष्यवक्ता ये कहते हैं कि जब वो बेबीलोन के शत्रुओं की वो आहट को सुन रहे थे, वो किस प्रकार वो शत्रु बहुत खतरनाक और खूंखार थे, जिन्होंने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदा को पूरी रीति से नाश कर दिया और यहूदा के देश को धूल में मिला दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों के मध्य में बहुत ही परेशानियों के मध्य में हबक्कुक कहते हैं 18-19 वचन में, तो अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरणी के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। Hope you got the message. मैं विश्वास करता हूँ कि आप तक संदेश पहुंचा है। So let me recap all the message which I have already said through the slide. और जैसे कि हमने अभी के सभी स्लाइडों में देखा, उस संदेश को हम समझने की कोशिश करें। So my favorite speaker, Mr. Warren Wiersbe, he said somewhere in his explanation of book of Habakkuk, chapter 1, Habakkuk raised questions. Chapter 2, Habakkuk made intercessions. Chapter 3, Habakkuk praised and worshipped God. और जो हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं डब्ल्यू वैरन वैज़बी, उन्होंने हबक्कुक की किताब के ऊपर एक लेख लिखा है, जिसे यहाँ सुंदर रीति से बताया गया है कि अध्याय 1 में उन्होंने कहा हबक्कुक ने सवाल परमेश्वर से किया। दूसरा चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि हबक्कुक ने मध्यस्थता किया है और तीसरे में लिखा है कि उन्होंने हबक्कुक ने परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना किया है। So in chapter 1, he was in valley. In chapter 2, he claimed tower. And chapter 3, he claimed mountain. और पहले अध्याय में वो तराई पर हैं
और दूसरे अध्याय में वो एक गुम्मट के ऊपर में है और तीसरे अध्याय में वो एक पर्वत के ऊपर में अंगीकार कर रहे हैं। And let me recap in a different format, in a contemporary way. The lessons to be learned through Habakkuk is that I'm not the only one in the kingdom of God, and there are many like me. और हम वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार हबक्कुक की किताब को पढ़कर एक अध्ययन सीख सकते हैं कि मैं इस संसार में परमेश्वर के राज्य में अकेला नहीं हूँ, जिसके साथ ये हो रहा है। That's the मेरे lesson समान number और one we भी। need to learn. Lesson number one we need to learn. और ये पहला अध्ययन है जिसे हम सीख रहे हैं। Sometimes, we go to God saying that as if I'm the only man, no other person on the face of the earth, and whatever I'm going through, immediately see that my problem is addressed. और कई बार हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं, प्रभु इस धरती पर मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है और किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या मेरे ही साथ केवल ऐसा हो रहा है? मुझे तुरंत इसका उत्तर दीजिए, ऐसा हम प्रेयर करते हैं। So God is God of all nations. God is God of all people. God is not only God limited to me and me alone. So God is God of all people. That's very important. We need to understand. और परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर नहीं है, परंतु वो सभी राष्ट्रों का और सभी लोगों का परमेश्वर है। वो केवल हमारा परमेश्वर नहीं है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। And number two, God knows everything because God is sovereign. No one can escape the judgment of God. God does everything in His time. और दूसरे भाग में हमने सीखा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो सार्वभौमिक परमेश्वर है और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से भाग नहीं सकता है। और तीसरी बात, परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर सब कुछ करेंगे। And thirdly, God can accomplish His purposes by using anyone, but no one can frustrate His plans or His purposes. और तीसरे भाग में हमने देखा कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए किसी को भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को रोक नहीं सकता है। And number four, God may allow wicked to discipline righteous, but wicked will pay for it. And in no way, God's holiness is tainted. और चौथे भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर कई बार दुष्ट लोगों को इस्तेमाल करते हैं धर्मियों को अनुशासन में लाने के लिए, और और वो इन दुष्टों को उसके कारण कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है और वे भी इसकी कीमत चुकाते हैं। और तीसरी बात हम सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता को छेड़खानी नहीं कर सकता है। Number five, in the judgment of God, righteous will get reward and wicked will be punished. और पांचवें भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय में धर्मी को प्रतिफल मिलता है और दुष्ट लोगों को दंड मिलता है। God is a God of righteous judge. परमेश्वर जो है वो धार्मिक और धर्मी न्यायी है। And there is no partiality with Him. परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। And number six, ultimately God will win and Satan and his host will be defeated. और छठवीं बात है कि अंत में परमेश्वर विजयी होगा और शैतान और उसकी सेना हार जाएगी। And the uniqueness of faith, we need to understand as we read the book. No matter how much faith one has in God, uh, may be prayerful, and most of us struggle severe emotional stress, which may lead to depression and will recover sooner or later. और पहली बात, हम जो विश्वास की जो अद्वितीय जो बातें हैं, उसके विषय में हम पहली बात सीख सकते हैं कि हम एक बात समझना है कि हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास कितना भी हो, हम कितने भी प्रार्थना करने वाले हो, हम में से बहुत सारे लोग सामना करते हैं और बहुत सारी भावनात्मक चोट में रहते हैं और हम निराशा में भी कई बार ये इन बातें में लेके जाती है, परंतु ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। Whatever circumstances we may go through, our prayers to God and our joy in Christ is the evidence of our faith in God. और कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो और कैसी भी परिस्थिति से हम जा क्यों ना रहे हों, परंतु हमारा जो परमेश्वर से प्रार्थना है और मसीह में जो हमारा आनंद है, वो इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Faith establishes our relationship with God. और विश्वास जो है, वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। We can also say like this, faith establishes our fellowship with God.
और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्वास जो है परमेश्वर के साथ हमारी संगति को स्थापित करता है। And uniqueness of faith, the transformation found in Habakkuk. He was disturbed when he looked at the people around him, but he was glad when he saw the Lord. और जो विश्वास के विषय में जो अद्वितीय जो परिवर्तन जो हम हबक्कुक की किताब में पढ़ते हैं, वो पहला ये है कि वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं जब वो लोगों को देखते हैं अपने चारों तरफ, परंतु वे बहुत ही आनंदित हो जाते हैं जब वो प्रभु की तरफ देखते हैं। Seeing the circumstances, he thought God did not care, but when he looked to God, he realized God's sovereignty, and thereby one who questioned God became worshipper of God. और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब वो हर प्रकार की परिस्थितियों को देखता है तो वो सोचता है कि परमेश्वर इसका ध्यान नहीं रखते हैं, परंतु जब वो परमेश्वर को देखते हैं तो वो इन बातों को समझ पाते हैं कि परमेश्वर सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है। और इस कारण से जो परमेश्वर पे सवाल करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का आराधक बन जाता है। Every believer must have struggle with sin. और हम जानते हैं कि हर जो विश्वासी है, वो पाप के कारण कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है। However great believer, however great experienced man of God could be, we all go through a kind of struggle with sin sometime or the other. और हम चाहे कितने भी बड़े विश्वासी हों, कितने भी बड़े ज्ञानी हों, कितने पुराने विश्वासी हों, परंतु हम कहीं न कहीं, कभी न कभी इस पाप के कारण हम कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। So the conclusion number one is that every believer must have a struggle with sin. और सारांश का पहला भाग ये है कि हर विश्वासी कहीं न कहीं पाप के कारण भुगतता है या सामना करता है। And point number two, come what may, walk with God in faith without backsliding, keeping in view that God may have some purpose behind it. और दूसरा सारांश का भाग ये है कि परमेश्वर के साथ विश्वास में चलने के लिए हमें वापस आना है और कभी भी हम बैकस्लाइडर नहीं बनना है, क्योंकि हम इस चीज़ को परमेश्वर में देखना है कि कहीं न कहीं हर बातों के पीछे परमेश्वर की कुछ योजना है। And Habakkuk's key verse, the just shall live by his faith, or the just shall live by his faithfulness. और अब हबक्कुक के जो हमने अध्याय पढ़ा है, वो उसका एक मुख्य जो केंद्र बिंदु है, वो है कि धर्मी जन विश्वास योग्यता से या विश्वास से जीवित रहेगा। I have given you the summary of Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews chapter 3 verse 38. I told you that there are three places in the New Testament. I have given you a summary of it. और सारांश के रूप में इसी वचन को नए नियम में हम देख सकते हैं, रोमियो 1 के 17 में, गलातियों 3 के 11 में और इब्रानियों 10 के 38 में। So, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the water covers sea. This is possible only when when a person's eyes of understandings are open, when a person is declared righteous or made righteous, he can see the glory of God, irrespective of whatever happens on the face of the earth. और जो ये वचन लिखा है दूसरा अध्याय के 14 में कि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से सब भर जाएगी, जैसा समुद्र जल में भर जाता है। और ये कब होगा? जब एक व्यक्ति जो है वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा और वो जो है वो अ, परमेश्वर की जब उसकी समझ को ओपन करेंगे और समझ की आँखों को जब वो खोलेंगे, तभी एक व्यक्ति इन बातों को देख पाएगा। And chapter 2, verse 20. But the Lord is in holy temple. He is on the throne, not of the throne. He is not sleeping, he is not passive, he is active, and he is on the throne, and he is in the temple, and he is in full control. And let all the earth silent before him. और दूसरा अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे, परमेश्वर सो नहीं रहा है, ऊँघ नहीं रहा है, परंतु वो अपने सिंहासन पर है, वो जाग रहा है और अपने समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। Even if the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vines, and if the yield of the olive fails, and the fields produce no food, even if the flock disappears from the fold, and there are no cattle in the stalls,
he says he will worship the Lord, he will praise the Lord, he will rejoice in the Lord because God is his strength. और अब 17, 18, 19 में वो कहते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के पेड़ में वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बलमूल है और मेरे पाँव हिरनी के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। I request Brother Anil Khare to please pray and pronounce benediction. जैसा करें। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और आशीष वचन के द्वारा विदा हो जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार हबक्कुक की किताब में वो बहुत सारे सवाल अपनी तमाम परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर के सामने रखते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें उत्तर देते हैं और उन्हें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराते हैं और धर्मी ठहराने के द्वारा वो उन्हें विश्वास योग्यता के द्वारा जय की ओर लेके जाते हैं पिता परमेश्वर। और हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब के अध्ययन से हमें पता चलता है प्रभु जी कि जब हमारी मन की आंखें खोली जाती है, मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है, तब हम परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को जो धरती पर भरी पड़ी है समुद्र के जल के समान उसे देख पाते हैं और तमाम परिस्थितियों के मध्य में भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाते हैं और कह पाते हैं कि परमेश्वर में मैं आनंदित हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु में मैं आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा बलमूल है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन सुंदर शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, हम इसे और सीख सकें और अपनी कलीसिया में और बहुतों के लिए सिखा सकें और इस वचन के द्वारा बहुत लोग आशीषित हो सके। हम सबको संभालिए, अनुग्रह कीजिए और पिता हम सबको आशीष दीजिए। महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति हम सबके साथ, परमेश्वर के वचन की अध्ययन करने वाले लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन।